Hello student, this is your chapter number 2, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, we will read about these topics. Okay, so let's start. So land, what is land? Land is in that we live. Our homes, building, roads, all are built on land. So land covers only 30% of the total surface area of Earth. It means 30% is land and 70% is water. So according to this chapter, the rugged topography, mountains, waterlogging areas, desert, thick forest are normally sparsely populated और unpopulated area. मतलब यहाँ कोई लोग नहीं रहते, जंगलों में पर्वतों पे रहते हैं तो बहुत कम लोग रहते हैं, जबकि plains and river valley are populated because plains and river valley has a fertile soil, river water. So these are very populated areas. Now we will read about land use. Land is used for agriculture, mining, forestry, building houses, road, setting of industries. This is known as land use. Now we will read about land type. There are two types of land. First is private land, second one is property resources land. This is common. So private land is owned by one person or rich person, and public land is available for ourselves. हम जो भी यूज करते हैं पब्लिक लैंड, वो किस में आती है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में. अब पढ़ेंगे हम लैंड को नुकसान कैसे होता है, मींस लैंड डिग्रेडेशन. तो इसके निम्न रीजन है: लैंड स्लाइड, soil erosion, desertification are the major threat to environment because the expansion of agriculture and construction activities. ज़्यादा खेती करने से, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने से हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है और इससे लैंड को हानि होती है. अब यहाँ in this figure you can see change in land use over time. First of all, this was a village. This was a village. Okay. Now people began to crop and building houses. Second one is, in third one you can see is town is developing, but in fourth one you can see the developed town became very big and make a major city. So this is land use change. Next thing is conservation of land resources. Conservation means to save. अब कैसे सेव करते हैं देखिए. अफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगाना, जंगल बनाना. लैंड रिक्लेमेशन मतलब जो अपनी खराब लैंड है उसको सही करना. रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, जो खाद वगैरह डालते हैं उनको कम मात्रा में डालना. चेक ऑन ऑर्गेनाइज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जैसे गाय भैंस जो चराई करते हैं, चारागाह, उनको उस जगह पर ना चरा के किसी अन्य जगह पर चराना. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट लैंड है उस पर ना चरा के कोई दूसरी लैंड पे चराना. Soil. Now we'll read about soil. But one topic is weathering. So what is weathering? The breaking up of decay of exposed rock by temperature change, frost action, plant and animals and human activities. जो भी चट्टान वगैरह है उनका टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाना ही वेदरिंग होती है. अभी क्यों होता है? टेम्परेचर चेंज की वजह से, पेड़ पौधों ने इंसानों की गतिविधियों की वजह से, ठंड, कोहरे, इनकी वजह से. Now we'll read about soil. Soil is made up of organic matter, minerals, weathered rocks found on earth. What is organic matter? It is made of organic microbes. What is minerals? Minerals are different chemical substances found on the earth on the mines.
whether rocks you have read it recently. And there there is a lot of time of beginning of the soil, means we have received soil 1 centimeter in many years, मतलब soil को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. Landslides. So what are landslides? Landslide is the movement of rocks, debris or earth down a slope. जैसे कोई बड़ी बहुत बड़ी चट्टान या बहुत बड़ा पृथ्वी का टुकड़ा जब अपनी जगह से हट जाता है तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड. दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स मतलब भूकंप के टाइम ऐसा होता है. इसे रोकने के लिए हम जैसे इस चित्र में बताया है, वी विल यूज डिटेंशन वॉल, मीन्स ए वॉल अराउंड दीज suspected landslide area. By building this wall, we can stop landslides. Now we will read about soil profile, but first we will read this box. It takes hundreds of years to make just 1 centimeter of soil. As I told you earlier, we will receive soil from the nature in many hundred years of just 1 centimeter. So you can see this is your soil profile. This is our soil particle, in which the lowermost is made of parent rocks. Second one is weathered rock material, and the third lowermost layer is subsoil with sand, silt and clay. मतलब इसमें sand होता है, silt होता है and clay होता है, जबकि parent rock होता है चट्टान वगैरह. ठीक है. And the topmost layer is made of vegetation and humus. Humus means the organic matter, means जैसे कोई पशु पक्षी मर जाता है तो ये बाज ये जो जानवर जब उसको खा जाते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं, वो पत्तियों के छोटे छोटे जब उनका चूर्ण बन जाता है तो वो सब मिला के क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमस. ओके. फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन मिट्टी बनने को ये जो निम्न टॉपिक्स है वो अफेक्ट करते हैं. क्लाइमेट हुआ, टाइम हुआ, फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको ह्यूमस बोलते हैं. रिलीफ, पेरेंट रॉक. ओके. So this is your questions which is given after the chapter factors affecting soil formation. अगर कोई क्लाइमेट मतलब अगर कोई ठंडी जगह है तो वहाँ मिट्टी अलग टाइप की होगी, टाइम तो लगता ही है मिट्टी बनने में. रिलीफ का मतलब होता है वहाँ की जगह कैसी है, पहाड़ी टाइप है, मैदान है, किस में. पेरेंट रॉक, जैसे अगर कोई चट्टान इग्नस होगी तो वहाँ अलग मिट्टी होगी, अगर कोई चट्टान मेटाफॉर्मिक होगी तो वहाँ की अलग मिट्टी होगी. अब आता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स. अब सॉइल को नुकसान कैसे होता है? डिफोरेस्टेशन से, ओवर ग्रेजिंग से, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ज़्यादा यूज़ करने से, लैंडस्लाइड और फ्लड्स यानी बाढ़ से. अब इनको रोकने के उपाय, विल रीड सम कंजर्वेशन प्लान. मल्चिंग. मल्चिंग का मतलब होता है जैसे दो दो पेड़ है, ठीक है. सॉइल कंजर्वेशन मीन्स सॉइल को एक ही जगह पर रखना है ना. अगर सॉइल यहाँ से वहाँ तक चली जाएगी, उड़ जाएगी, तो इस जगह बंजर हो जाएगी, है ना, तो ये नुकसान है. तो इसको अपन एक ही जगह पर कैसे रखें, ये होता है सॉइल कंजर्वेशन. मल्चिंग. मल्चिंग का मतलब होता है दो पेड़ों के बीच में कोई ऑर्गेनिक मैटर मतलब घास फूस वगैरह ये डाल देना, ताकि क्या है मिट्टी वहाँ बनी रहे, नमी बनी रहे. काउंटर बैरियर्स. In counter barriers, we will arrange stones, grass, soil used to build barriers along counters. Trenches are made in front of the barriers or collect water. इसमें क्या करते हैं, जैसे पेड़ वगैरह होंगे, एक जैसे ही
यहाँ से आपकी मिट्टी बह रही है, ठीक है, इधर से। तो हम इसके काउंटर में, मतलब इस तरफ से हम क्या करते हैं, पत्थर वगैरह लगा देते हैं, और ज़्यादा मिट्टी लगा देते हैं, घास वगैरह ये सब इसको काउंटर करने के लिए बना देते हैं, इसलिए ये होता है काउंटर बैरियर्स। रॉक डैम्स, रॉक डैम्स ये पानी के फ्लो को रोकने के लिए काम आता है, ठीक है। इससे सॉइल उसी जगह बनी रहते हैं और सॉइल लॉस नहीं होता है। टेरेस फार्मिंग ये सबसे मोस्ट है आपका। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यू कैन सी टेरेस फार्मिंग activity in this picture. In terrace farming we will build terrace size planes, means on steep slopes we will build flat surface available to crops area। जैसे ये पहाड़ी है तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे यहाँ सीढ़ी नुमा खेत बना देते हैं, जिससे क्या है पानी पूरा एक साथ नीचे नहीं आ पाता और उन खेतों में ही रुक जाता है ना। तो सीढ़ी नुमा यहाँ खेत बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज intercropping. In intercropping we will use alternative crops, okay। मतलब इस लाइन में तो आपने गेहूं उगा दिया, इस लाइन में आपने सरसों उगा दी, फिर गेहूं उगा दिया, फिर इस लाइन में सरसों उगा दी, ऐसे ये होता है इंटरक्रॉपिंग। काउंटर प्लॉइंग, प्लॉइंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ ए हिल, मतलब अगर पहाड़ी इधर की साइड है, पानी या मिट्टी ऊपर से नीचे बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जुताई करेंगे, ये होता है काउंटर प्लॉइंग। शेल्टर बेड, in the coastal and dry regions row of trees are planted to check wind movement to protect soil cover। इस पे क्या करता है, जैसे कोई कोस्टल रीजन होता है तो वहाँ हम इस पिक्चर की तरह एक पेड़ लगा देते हैं, ताकि फिर इससे हवा का मूवमेंट पता लगता है, हवा किस साइड बह रही है, और फिर उसी के अनुसार हम मिट्टी रोकने के उपाय करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट वाटर। सो 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That's why our planet is called water planet. Earlier I told you that 30% of the total Earth's surface area is land and remaining of water. Water is primarily found on oceans, rivers, lakes, ponds, etc., in which fresh water accounts only for 2.7%, and only 1% of fresh water is available and fit for human use, and that is found on groundwater. Surface water is rivers and lakes. Now we will discuss about the uses of water. So water is basically used in drinking, washing, agriculture, industries, generating electricity through dams. So here in this chart you can see 150 liter per day a person uses water in his daily routine. Now we will discuss about problems of water availability. There is scarcity of water in the whole world, and the main reason for scarcity is water pollution. Scarcity means कमी, कम होना, okay। Now conservation of water, कंजर्वेशन मतलब बचाना, मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ आप चित्र देख रहे हो, ये यमुना नदी है जो काफ़ी पल्यूटेड हो गई है। इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट निकलता है, कचरा निकलता है, हम लोग अपना जो नदी नाले का कचरा है वो सब इसी में डालते हैं नदियों में, इसलिए ये क्या करती हैं, पॉपुलेटेड हो जाती है, सॉरी पोल्यूटेड हो जाती है। They pollute water with nitrates, metal and pesticides. So what are the pollution element? Nitrate, metal and pesticides.
Now, how to conserve water resources? So first, our first step is forest and other vegetation plantation. मतलब जंगल लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, तो वो क्या करते हैं, पानी के बहाव को रोक देते हैं. सेकंड मेथड इज वाटर हार्वेस्टिंग. मीन्स पानी को बचाना. एंड व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? मतलब बरसात के पानी को इकट्ठा करके एक टैंक वगैरह में डाल देना. ओके. एंड अदर मेथड्स आर द मेकिंग ऑफ कैनल्स, tanks, sprinklers. As you can see in this picture, a sprinklers is shown. It minimizes the uses of water in agriculture. Now, natural vegetation. So, what are natural vegetations? Forests, plants, and wildlife means animals. Okay. Here you can see the definition of biosphere. The narrow zone between lithosphere, hydrosphere, and atmosphere that we live is called biosphere. So biosphere क्या होता है? लिथोस्फेयर मतलब जमीन, हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी, समुद्र सागर, एटमॉस्फेयर यानी हवा. इन तीनों का मिला के जो नैरो जोन कॉमन एरिया बनता है उसे बोलते हैं बायोस्फेयर. एंड व्हाट इज इकोसिस्टम? द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम where all human beings, plants are interrelated and interdependent on each other for survival is called ecosystem. What is the use of plants? Plants provide us timber, give shelter to animals, oxygen we inhale, and attract clouds for rains, protect soil, essential for growing crops, give us give us fruits, nuts, latex, oil, gum, and medicinal plants. And what are wildlife? I told you earlier that animals, birds, insects are included in wildlife. From them we get meat, milk, wool, honey, etc. They are also useful in pollination of flowers. मतलब फूलों को उगाने में कौन मदद करता है? कीड़े. अब जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसे खाने के लिए कौवे, चील वगैरह आता है, तो वो भी क्या करते हैं, एक तरह से वातावरण को दूषित होने से बचाते हैं. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो सड़ा गला मांस खा जाते हैं तो उससे बदबू नहीं फैलती, कीटाणु नहीं फैलते, और उन्हें बोला जाता है डीकम्पोजर. इस चीज को क्या बोला जाता है? डीकम्पोजर. अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. मतलब किधर किधर नेचुरल वेजिटेशन होती है. द मेजर नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा एंड स्क्रब. स्क्रब्स का मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियाँ. टुंड्रा का मतलब होता है बर्फीले क्षेत्रों में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें. इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव. जहाँ ज़्यादा बरसात होती है वहाँ घने पेड़ पौधे होते हैं. एंड फॉरेस्ट्स आर फाउंड नियर एब्यूटेंट वाटर सप्लाई. ओके. In dry area, as you can see, there is no rain, so you can see no plants there. If you can see plants, then they will be in form of scrubs, having no leaves, with deep roots and waxy surface. क्योंकि वहाँ पानी तो होता नहीं है, इसलिए क्या होती है, वहाँ की जड़ें वगैरह, उस पेड़ पौधे की जड़ें लंबी होती हैं ताकि वो अंडरग्राउंड वाटर तक जा सके.
Okay, there are many more people in the world than there were 2 centuries back. आजकल क्या है, पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो रही है, तो हमको क्या करना पड़ रहा है, जंगलों को काट के वहां उस जगह खेती करनी पड़ रही है. सो एज ड्यू टू ह्यूमन नीड टू फुलफिल ह्यूमन नीड, वी हैव टू कट द फॉरेस्ट and make them into field so that we can crop and fulfill our human needs of food. Now, conservation of natural vegetation and wildlife. अब हम जानेंगे इनको बचाया कैसे जाता है. तो नुकसान किस वजह से होता है, चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट एंड एनिमल. ओके, तो ये आपका रीजन हुआ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये इनकी वजह से क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचा जाता है. अब इनको रोकने के उपाय, these can be conserved by increasing awareness, है ना, increasing awareness. and ये तो पहला मेथड हो गया. एंड सेकंड वन इज वी हैव टू बिल्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स to protect natural vegetation and wildlife. What are national park? एक काफी बड़े जंगल होते हैं, वहाँ पेड़ पौधे पशु पक्षी सब कुछ होता है. जैसे देखा होगा आपने रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, ये सब राजस्थान के नेचुरल पार्क है. तो इस तरह से हमने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बचाने के तरीके को पढ़े. कौन कौन से हैं बचाने के तरीके, पहला है इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड सेकंड वन इज बिल्ट नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स. ओके, और ये किस वजह से इनको नुकसान होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. देखिए यहाँ भी दिया हुआ है अवेयरनेस प्रोग्राम, ये किस में आता है, इंक्रीजिंग अवेयरनेस में. like social forestry and वनो महोत्सव should be encouraged. social forestry मतलब कि हम भी अपनी तरह से ज़्यादा प्लांट लगाए, छोटा मोटा जंगल लगाए. वन महोत्सव शुड बी एनकरेज्ड. ठीक है, तो अवेयरनेस प्रोग्राम कौन कौन से हुए, सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव. एंड इन इंडिया किलिंग ऑफ लॉयन, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड पीकॉक स्टिल इलीगल. तो गवर्नमेंट भी अपनी हेल्प करती है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए. ठीक है, विच इज आवर नेशनल एनिमल, टाइगर, and national bird, peacock. So this is your chapter number 2, and now this is questions. You have to find out question in your book, and if you have any problem then ask me on WhatsApp. Here I will tell you some of these questions. Which are the two main climate factor responsible for soil formation? जो 5 आपको फैक्टर दिए हुए थे सॉइल वाले टॉपिक में, वो आपको केवल 2 लिखने हैं. राइट हैंड, 2 रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे, overgrazing, and second one you have to find why is land considered an important resource, because we can build road, schools, buildings, houses, and grow crops. फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको करना इजी है. टिक द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, इट्स सॉइल टेक्सचर. Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep soil terraced cultivation? Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? Disposed polybags. ये आपको मैचिंग करनी है, काफी सरल है. और क्वेश्चन नंबर 4 आपको बुक में मिल जाएंगे. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड रीजन. क्यों, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं और दो फर्टाइल लैंड है, तो इस वजह से ये ओवर पॉपुलेटेड है.
वाटर अवेलेबिलिटी पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइन ड्यू टू पॉल्यूशन। इसमें आपको ट्रू फॉल्स लगाना है, ठीक है। तो पहला आपका ट्रू हुआ, दूसरा भी ट्रू है। ड्रॉप्स ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग, ये गलत है ना, ये फॉल्स है। सही आंसर आप देखना बुक में मिलेगा। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंज ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम, ये आपका फॉल्स है, क्योंकि ये मेंटेन ना करके नुकसान पहुंचाता